Bhavna Sahani, the founder of Futuristic Academy, and I'm back with a new video for class 10th in which we are starting with the new poem, A Tiger in the Zoo. So let's get started with this one. बेसिकली जो ये पोयम है यहाँ पे दो टाइगर्स को डिस्क्राइब कर रही है. वन द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड द अदर इज द टाइगर लॉक्ड इन अ केज इन द जू. तो जो अगर मैं टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटेट की बात करूँ तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर इज फॉरेस्ट. तो हम यहाँ पे दो टाइगर की बात करें, वन अ टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड द अदर वन अ टाइगर इन द जू. तो हम दोनों में देख रहे हैं टाइगर के बिहेवियर का डिफरेंस क्या है. So let me just first read the poem for you. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he locked in a concrete cell, his strength behind bar, stalking the length of his cage, ignoring visitor. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and the stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. Alright, so let me just explain this first stanza for you. He stalks in his vivid stripes. ठीक है, stalks मतलब walk, right? He stalks और vivid stripes आप लोगों को पता है. Here I'm talking about the black stripes of the tiger. The few step of his cage, for example, this is the tiger locked in a cage, and जो tiger है, he can just take only few steps in his cage on a pads of a velvet quiet. तो जो pads होते हैं tiger के, ठीक है, paws basically वो velvety होते हैं, and जब paws के through वो move कर रहे होते हैं, बहुत आराम से quietly move कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता कि tiger is moving. So that is why it has been said कि जो उसके paws थे वो बहुत quiet थे, हमें उनके move करने का पता नहीं चल रहा था. In his quiet rage is angerness. Alright, तो जो टाइगर है केज के अंदर, he is moving inside the cage, इधर से उधर मूव कर रहा है. ही इज टेकिंग फ्यू स्टेप्स ओनली बिकॉज ही इज लॉक्ड इन अ केज, एंड जो वो फ्यू स्टेप्स ले रहा है वो भी बहुत क्वाइटली ले रहा है. उसके मूवमेंट का हमें नहीं पता लग रहा बिकॉज हिज वेलवेटी पॉज आर वेरी क्वाइट एंड ही इज इन अ क्वाइट रेज. दो ही इज एंगर बट ही इज क्वाइट, क्योंकि वो जू में बंद रह के, एक केज में, प्रिजन में बंद होके वो कुछ नहीं कर सकता. जो टाइगर है राइट नाउ ही इज लॉक्ड इन अ केज, जो कि जू का केज है, एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज. तो जब वो एक केज में बंद हुआ हुआ है तो साथ ही साथ उसका जो एंगरनेस है, जो उसकी रेजनेस है, वो भी एक केज में बंद हो गई है. ही कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट मूविंग इन द केज फ्रॉम हेयर टू देयर, टेकिंग फ्यू स्टेप्स, एंड ही इज जस्ट मूविंग with his rage, but a quiet rage, जो अपनी एंगरनेस को वो नहीं शो कर सकता because he is locked in a prison. All right, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water holes where plump deer pass. Lurking का basically मतलब क्या? Lurking here means hiding. He should be hiding in the shadow, sliding through a long grass. तो अगर यहाँ पे जो second stanza है, here I am talking about the natural habitat. Here I am talking about the natural habitat of the tiger, that is forest. अगर यही tiger forest में होता तो वो क्या कर रहा होता? He must be hiding in the shadow through behind the long grasses, और वो अपना शिकार ढूंढ रहा होता near the water hole. ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता? वाटर होल के पास, मतलब रिवर जो थी फॉरेस्ट में, उसके पास अपना शिकार ढूंढ रहा होता. और शिकार क्या होता? प्लम्प डियर, एक फैट डियर. ऑल राइट, तो अगर वही टाइगर जो जू में लॉक्ड है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, अगर वही नेचुरल हैबिटेट में होता तो ही मस्ट बी हाइडिंग बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास इन द शैडो एंड नियर द रिवर. वो अपने शिकार को ढूंढ रहा होता, दैट इज द डियर, प्लम डियर. All right, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो basically ये वाला stanza भी जो है, ये zoo के basically tiger के natural habitat का है, that is forest का है. All right, so he should be snarling around houses. जो first stanza वो zoo का है. All right, तो अगर
जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, फॉरेस्ट में होता, तो बेसिकली ही शुड बी स्नार्लिंग, दैट मीन्स मूविंग अराउंड द हाउसेस, जो उसके फॉरेस्ट के बाहर जो आसपास विलेजेस थे उनके घरों के आसपास घूम रहा होता, राइट, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स शोइंग हिज वाइट टीथ, जो बाहर फैंग्स, जो बाहर टीथ आते हैं वो दैट वाइट टीथ, उसके क्लॉज जो होते हैं वो शो कर रहा होता, उनको बैर कर रहा होता, एंड ही मस्ट बी टेरराइजिंग द विलेजर्स, जितने भी विलेजर्स है उनको वो काफी ज्यादा डरा रहा होता, उनको टेरराइज कर रहा होता, क्लियर, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। तो अब ये वाला जो स्टैंजा है इट इज टॉकिंग अबाउट द जू, एंड राइट नाउ द नरेटर, द पोएट इज सेइंग कि जो टाइगर है ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ठीक है, एक सेल में बंद है, वो उससे बाहर नहीं आ सकता, उसकी जितनी भी एनर्जी है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसका जो गुस्सा है, इट इज ऑल्सो बिहाइंड द बार, दैट इज ऑल्सो लॉक्ड बिहाइंड द बार, जैसे एक टाइगर है जू में लॉक्ड बिहाइंड द बार, वैसे ही उसका गुस्सा जो है इट इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, stalking the length of his cage, ignoring visitor. अब right now what the tiger is doing in the zoo, वो एक locked है behind the bars, he is blocked in a cage, उसका गुस्सा भी locked है, वो अपनी strength show नहीं कर रहा क्योंकि उसका गुस्सा, उसकी strength सब behind the bars है, ठीक है, he is just stalking the length, basically वो जो cage है उसमें इधर उधर घूम के उसकी length नाप रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, and he is ignoring the visitors, क्योंकि visitors को वो गुस्सा नहीं दिखा सकता बिकॉज ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, तो वो गुस्सा दिखा के भी कुछ नहीं कर सकता, राइट, सो यहाँ पे बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ को दिखाया गया है कि वो एक बिहाइंड द बार्स लॉक्ड है, और यही अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, ही मस्ट बी टेरराइजिंग द विलेजर्स, राइट, सो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। सो यहाँ पे जो टाइगर दिखाया गया वो बहुत सैड है, व्हाई ही सैड, बिकॉज ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स एंड ही कैन नॉट डू व्हाट ही वांट्स टू डू, वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, वो अपनी रेजनेस नहीं दिखा सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स विद द टाइगर इटसेल्फ, राइट, तो लास्ट वॉइस किसकी आती है एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स की, पेट्रोलिंग कार्स की क्या होती है, पेट्रोलिंग कार्स पुलिस ऑफिसर्स की कार होती है, गार्ड्स की कार होती है, टू जस्ट बेसिकली सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन द नाइट, ठीक है, तो बेसिकली लास्ट वॉइस किसकी सुनता है वो जो टाइगर जू में होता है, ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, राइट, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अब और क्या करता है, अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी शाइनिंग आइज से उन शाइनिंग स्टार्स को स्टेयर करता है, बिकॉज ही इज सैड, व्हाई ही इज सैड, he is sad because he is locked behind the bars, all right, rhyme scheme of the poem, rhyme scheme क्या है, stripes, stripes से rhyming कुछ है, cage नहीं है, quiet नहीं है, rage नहीं है, all right, तो stripes is A, now second is cage, cage से राइमिंग हो गया रेज, तो ये दोनों बी भी हो गए, एंड क्वाइट इज ऑल दो डिफरेंट, तो ये हो गया सी, तो आपका राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी सी बी, ऑल राइट, सो द राइम स्कीम इज ए बी सी बी, सो लेट्स सी, शैडो, ग्रास, ऑल राइट, होल, पास, तो ये भी आपका ए बी सी बी, तो आपकी पूरी पोयम का ही राइम स्कीम होगा ए बी सी बी, ऑल राइट, आफ्टर राइम स्कीम लेट्स सी पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा, यहाँ पे जो बेसिकली ही है, ही इज यूज फॉर टाइगर, बेसिकली ही पर्सन के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे एनिमल के लिए यूज किया गया है, सो हेयर वी कैन से द टाइगर इज पर्सोनिफाइड, ऑल राइट, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड, नेक्स्ट आता है मेटाफॉर, मेटाफॉर इज कंपैरिजन ऑफ अ थिंग, all right, comparing something to the other thing without using the word as and like, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वेलवेट, यहाँ पे जो बेसिकली टाइगर के पॉज है वो वेलवेट से कंपेयर किए गए हैं, सो वी कैन से द मेटाफॉर इज यूज्ड हियर, ऑल राइट, उसके बाद आता है इंजैबमेंट, इंजैबमेंट बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूइंग द लाइन्स विदाउट द पंचुएशन, ऑल राइट, कंटिन्यूइंग द लाइन्स विदाउट द पंचुएशन, अब यहाँ पे कहाँ पे इंजैबमेंट यूज हुआ हुआ है, लेट्स सी दैट, अब देखिए इंजैबमेंट कहाँ पे यूज किया गया है, ही स्टॉक से लेके केज तक, पंचुएशन नहीं यूज करी हुई, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए जो कि नहीं यूज किया गया, सिर्फ एन में कॉमा है, ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू से लेके डियर पास तक अगेन नो पंचुएशन इज यूज्ड, एंड फ्रॉम एंड स्टेयर से लेके ब्रिलियंट स्टार्स तक, तो ये जहाँ पे भी ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे इंजैबमेंट यूज किया गया है, व्हाट इज इंजैबमेंट, इंजैबमेंट इज कंटिन्यूइंग द लाइंस विदाउट द पंक्चुएशन, इंजैबमेंट के बाद आपका आता है नया इमेजनरी, अब इमेजरी क्या है,
to imagine something. Now you can imagine very nicely. He stalks in his vivid stripe the few steps of his cage. Yes, he stalks in his vivid stripe. वो अपनी vivid stripe में क्या कर रहा है? He's just taking few steps in the cage. तो ये बहुत imaginary है. Moreover, lurking shadow, that he's be hiding in the shadow. This is also very imaginative. तो यहाँ पे हमारा imagery use हुआ है. All right. After imagery comes consonants. All right. Consonants क्या हो गया? Consonants is repeating of a consonant sound. All right. Consonants is repeating of the consonant sound. ठीक है. यहाँ पे strength behind bars. His strength behind bars. S repeat हो रहा है ना. His strength behind bars. तो यहाँ पे S की sound repeat हो रही है. Consonants is repetition of the consonant sound. All right. तो यहाँ पे आ गया his strength behind bars. All right. After consonants comes, so assonance basically is the repetition of the vowel sound. Vowel sound कहाँ पे repeat हो रही है? Locked in a concrete cell and with his brilliant eyes. यहाँ पे O की sound repeat हो रही है. With his brilliant eyes यहाँ पे I की sound repeat हो रही है. All right. After that, let's move on to oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is two opposite objective को इकट्ठे use करना, दो अलग अलग qualities को इकट्ठे use करना. That is quiet and rage. Quiet is being quiet and rage is गुस्सा. तो गुस्सा होना और चुप होना दोनों साथ नहीं हो सकता. So यहाँ पे oxymoron use किया गया. And next comes the alliteration. What is alliteration? Alliteration means repetition of the first letter. फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है. जैसे प्लम पास, पी पी हो गया, प्लम पास, तो रेपिटेशन हो गया पी का. यहाँ पे alliteration यूज हुआ है ही हियर्स, he hears. तो यहाँ पे भी आपका alliteration यूज हुआ है. So this is the figure of speech we have done today with the poem A Tiger in the Zoo. And I hope ये आप लोगों को समझ आया. If you still have any doubt, you can ask to me. You can comment in the comment box so that I can clear your doubt. And yes, if you like my video, do not forget to subscribe our channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. For online and offline classes, you can contact us on the number given below in the video. Moreover, for notes, you can reach us out on Instagram, Facebook, and Telegram. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye, everyone.